So let's start the new questions, new practical questions. Amalgamation Bunty and Kuber, March 2007 question is that. Here, let's start. I'm reading the question for you guys. BK Limited is formed to take over the Bunty and Kuber Limited. In this, so this one is also a case of amalgamation, where the Bunty and Kuber is an old company and BK Limited is a new company. Once again, I am telling you, BK Limited formed to take over the new Bunty and Kuber Limited. So in this question also, this question is also related to amalgamation, where the Bunty is old, Kuber is old, and the BK Limited is a new company, guys. So now the liabilities and the asset side is given. Now you can see in your question: equity, share capital, preference, general reserve, P&L, debenture, creditors, and other liability. Same way the asset side is goodwill, building, machinery, furniture, investment, data, stock, cash, bank, other current asset, and share issue expense. So guys, now can we start to solve the adjustments? First adjustment: BK Limited issued a 10,000 equity share of 10 is to a public at a premium of 10%. This adjustment is related to the new company. New company, after forming a new company going to issue public issue. That is an issue of share at a premium. That entry you are going to be passed if the new company is required. Now, the BK Limited and the Kuber Limited were taken over by the BK Limited on the following terms. Now guys, after reading the balance sheet and the basic questions, basic adjustment of the topic, you should understand that after reading the question, you should understand now the method of PC of each company and then what you need to going to prepare in the answer. Now, first, regarding the Bunty Limited, equity shareholders are to be issued a 7 equity share of rupees 10 each at a par in BK Limited and are to be paid 5 rupees in cash for the surrender of 6 shares. So here the payment of equity shareholder is given to you. 5 के बदले में 6 shares, 6 के बदले में 7, 10 के बदले में 20, 10,000 share, 20,000, 30,000 share issued by the new company to the equity shareholder. It means it is a net payment method. Guys, जब कभी किसी क्वेश्चन में इक्विटी शेयर होल्डर के पेमेंट के बारे में क्लियर कट बोला गया हो तो ये नेट पेमेंट मेथड है. ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है. अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर होल्डर के पेमेंट के बारे में बोला गया हो तो ये नेट पेमेंट मेथड है. नंबर्स दे दिए होंगे 5 पे 6 पे 7, 8 पे 10, then it will be assumed that it is a net payment method. So here Bunty Limited, to old company equity shareholders get a equity share capital in new company. Now here you are going to write held and issue. So you came to understand how many shares are issued by the new company to old company. First, equity shareholders are to be issued. Issued how many shares? 7 shares. 7 shares are going to be issued, are to be paid 5 rupees cash and for 6 shares. Held is 6. Now, how you get the 6? That is given in adjustment. So now comes to the balance sheet. Bunty Limited is 2,40,000 equity share are there. One share value is 10 rupees. So 2,40,000 divided by 10. So you get a 24,000 shares are held by the Bunty Limited. तो 6 शेयर के बदले में 7 शेयर दिए जाएंगे तो 24,000 शेयर के बदले में कितना? वापस एक बार बोल रहा हूँ, 6 शेयर पे 7 शेयर दिए जाएंगे तो 24,000 शेयर पे कितना? सो इन दिस केस 24,000 into 7 divided by 6, so you get an answer that is 28,000 share. Now company are going to issue 28,000 share of rupees 10 each. So in that case the total value is 2,80,000. Company also paid a cash to an old company equity shareholder. How much cash they give? 5 rupees cash in consideration of 6 shares. 5 रुपया रोकड़ा दिया जाएगा 6 शेयर्स के बदले में. तो फिर एक बार हम यहाँ पे करेंगे हेड और इशू. 6 शेयर्स के बदले में 5 रुपए रोकड़े दिए जाएंगे, कैश में दिए जाएंगे. 6 शेयर्स अगर आपके पास ओल्ड कंपनी में हो तो आपको 5 रुपया रोकड़ा दिया जाएगा. आपके पास 24,000 शेयर है तो आपको कितना रुपया कैश दिया जाएगा? सो दैट इज रुपीज 20,000 rupees. Now the second payment,
there are two shareholders in the question. One is equity shareholder and another is a preference shareholder. Equity shareholders payment I already discussed with you. ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर धारकों को न्यू कंपनी में इक्विटी शेयर मिलेगा और कैश भी मिलेगा। ओल्ड बंटी लिमिटेड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर धारकों को बीके लिमिटेड में इक्विटी शेयर भी मिलेगा और कैश भी मिलेगा। 6 शेयर के बदले में 7 शेयर मिलेंगे, 6 शेयर्स के बदले में 5 रुपए मिलेंगे। आई एम टेलिंग यू, 6 शेयर्स के बदले में 7 शेयर मिलेंगे, 6 शेयर्स के बदले में 5 रुपए मिलेंगे। सो हियर द इक्विटी शेयरहोल्डर गेट 3 लाख रुपीस, 2,80,000 in the equity share capital and 20,000 is a cash. Now continue with this second part, second adjustment. Let's continue. The preference shareholders are to be paid, मतलब ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा 10% प्रीमियम, मतलब जितनी भी बैलेंस शीट में वैल्यू है उसका 10% उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया जाएगा। बाय मतलब किस फॉर्म में पेमेंट होगा। 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स आर इन बीके लिमिटेड आर इशूड एट पार। तो एक बार स्टूडेंट्स को बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में 11% प्रेफरेंस शेयर किया है 1,50,000 का, मतलब ओल्ड कंपनी के कौन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर? ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उनको न्यू कंपनी में 12.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया जाएगा और वो भी 10% प्रीमियम। टोटल वैल्यू 1,50,000 है, 10% प्रीमियम पे होगा तो 1,65,000 रुपीज का पेमेंट होगा। सो इन दैट केस योर टोटल पीसी इज 4,65,000। वापस से बोल रहा हूँ, ओल्ड कंपनी के 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को न्यू कंपनी में 12.5% प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम में दिया जाएगा। तो 1,50,000 का 10% होता है 1,65,000। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी पीसी की 4,65,000 रुपीज। सो इन दैट केस 3 लाख रुपीज इक्विटी को दिया जाएगा और 1,65,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। सो दिस इज अ पीसी ऑफ बंटी लिमिटेड। नाउ लेट्स रीड द एडजस्टमेंट ऑफ कुबेर लिमिटेड। हमें दोनों ही कंपनी के मेथड्स की पीसी जाननी है। कैश ऑफ ₹3,000 इज टू बी रिटेन इन फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस। फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ कुबेर, डेटर्स एंड द इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 90% ऑफ द कॉस्ट। मशीनरी एंड द स्टॉक आर वैल्यूड एट 10% अबव द कॉस्ट। अब तक इक्विटी शेयर होल्डर के पेमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई नहीं है। अभी भी बोल रहा हूँ, इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो ये नेट असेट हो जाएगा। तो हम पहले तो जब हम ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे क्या इक्विटी शेयर होल्डर के पेमेंट की कोई इंफॉर्मेशन है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम। वो तो सेम है, जो इनको प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट था वही प्रेफरेंस शेयर इधर है। पर इक्विटी का बोला गया है क्या? हम सिर्फ इक्विटी पे कंसंट्रेट करेंगे कि अगर इक्विटी के पेमेंट की इंफॉर्मेशन है तो ही वो नेट पेमेंट है, वरना वो नेट असेट है। Here the balance of pieces payable in a equity share at a par। यहाँ इक्विटी शेयर पे एक भी पैसे की इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि भाई 3 के बदले में 4 या 5 के बदले में 10 या 10,000 और 20,000, ऐसा कोई भी नंबर्स इक्विटी शेयर के एडजस्टमेंट में नहीं है। तो ये नेट असेट मेथड। आई एम टेलिंग यू, इक्विटी शेयर के पेमेंट की इंफॉर्मेशन अगर एडजस्टमेंट में नहीं है तो ये नेट असेट मेथड है। लेट्स स्टार्ट। अगर ये नेट असेट मेथड है तो बट ऑब्वियस हमें सन्ड्री असेट्स में से सन्ड्री लायबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी। सन्ड्री असेट्स में से सन्ड्री लायबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी। नाउ सन्ड्री असेट एट अ रिवाइज्ड वैल्यू गाइस। सो ऑल असेट्स आई एम गोइंग टू राइट हियर। सबसे पहले कौन सा असेट्स हम देखेंगे? गुडविल, बिल्डिंग, गुडविल, बिल्डिंग। Next asset is machinery, furniture, machinery, furniture, investment debtors, investment debtors
After investment and debtor, cash at bank and other current asset, cash at bank, other current assets, the next is stock. This is your assets. Now we should write the revised value. Revised value मतलब वो वैल्यू जो एडजस्टमेंट में दी। अगर इधर एडजस्टमेंट में वैल्यू नहीं है तो हम उसकी वैल्यू बैलेंस शीट से लिखेंगे। तो एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। पहला है कैश। कैश इज 3000 टू बी रिटेन फॉर द लिक्विडेशन एक्सपेंस। मतलब अभी देखिए बैलेंस शीट में कुबेर लिमिटेड का कैश कितना है, 8000 है, उसमें से 3000 लेना नहीं है, तो कैश में से 8000 की वैल्यू में से अगर 3000 रुपया कम कर देंगे, माइनस कर दें, क्योंकि वो रिटेन है, तो बैलेंस वैल्यू इज 5000। सेकेंड एडजस्टमेंट गाइस, डेटर्स एंड इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 90%। डेटर्स और इन्वेस्टमेंट, डेटर्स की वैल्यू क्या है, ये होगी जो भी वैल्यू होगी डेटर्स में 90% लेना है। सेम वे इन्वेस्टमेंट में भी जो भी वैल्यू है उसका 90% लेना है। नाउ द डेटर्स, डेटर्स कितना है गाइस 60,000 एंड इन्वेस्टमेंट कितना है 80,000, तो 60,000 डेटर्स का 90% लेना है, दैट इज 54,000, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 80,000 है, उसका भी 90% लेना है, देन इट बिकम्स 72,000। नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट गाइस, वापस से बोलता हूँ, डेटर्स और इन्वेस्टमेंट 90% लिया, कैश बैंक जितना भी था उसमें से 3,000 रुपये रिटेन कर दिया। सो व्हाइल यू रिटेनिंग द वैल्यू, व्हाइल यू रिटेन द वैल्यू, मतलब उतना कैश कम हो जाएगा, तो कैश की बैलेंस शीट वैल्यू हमें आउटर कॉलम में मिलेगी एज अ पीसी कंसिडरेशन। नेक्स्ट, मशीनरी एंड स्टॉक आर वैल्यू 10% अबव द कॉस्ट। मतलब मशीन की वैल्यू और स्टॉक की वैल्यू 10% प्लस करना है गाइस। मशीन और स्टॉक की वैल्यू 10% अबव ले जाएंगे, अबव मतलब प्लस करना है। तो पहले बैलेंस शीट में देखिए मशीन की वैल्यू 60,000 है और स्टॉक की वैल्यू 90,000 है। मशीन की वैल्यू 60,000 है, अगर हम 10% प्लस कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 66,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी है गाइस, स्टॉक की वैल्यू 90,000 है और उसकी वैल्यू 10% प्लस करेंगे तो ये 99,000 हो जाएगी गाइस, 99,000। द नेक्स्ट इज नेक्स्ट, एंड अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट अ बुक वैल्यू एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट। मतलब बाकी को जितने भी असेट्स हैं, गुडविल, बिल्डिंग, फर्नीचर, अदर करंट असेट, ये सभी बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगे। चलो गुडविल कितना है फ्रेंड्स 25,000, वो मैंने बैलेंस शीट से लिखा। बिल्डिंग की वैल्यू मैं बैलेंस शीट से लिख रहा हूँ 1,40,000। मतलब जो भी असेट्स की वैल्यू अगर एडजस्टमेंट में नहीं है इट विल बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू, ऐसा एडजस्टमेंट में दिया है। फर्नीचर की वैल्यू एडजस्ट बैलेंस शीट में 5,000 है, वो भी बैलेंस शीट से लिख रहा हूँ। देन द नेक्स्ट वैल्यू इज अदर करंट असेट, उसकी वैल्यू भी बैलेंस शीट से लिख रहा हूँ। सो दिस ऑल वैल्यू विल बी कम्स फ्रॉम बैलेंस शीट वैल्यू। I will write a balance sheet value. I will write a balance sheet value. I will write balance sheet value. Now I will total out the total assets value is total asset is equal to 0,0,0,0,0 9 5 14 17 19 25 26 5 36 3 2 5 9 6 15 17 27 28 9 37 और 3 और 1 4, 4,76,000 is the total assets value. Guys, out of the total asset you are going to deduct the total liability. Now in this question there are 3 liability: debenture, creditors and other liability. Now out of the value of total asset you are going to deduct less total liability, liabilities minus करेंगे, sundry liabilities minus करेंगे हम सन्ड्री लायबिलिटी की वैल्यू भी एडजस्टमेंट से लेंगे, पर फिलहाल इस क्वेश्चन में एक भी रिवाइज वैल्यू या रियलाइज वैल्यू नहीं दी गई है, सिर्फ डिबेंचर्स की दी है, तो हम लोग डिबेंचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कुबेर लिमिटेड एफ, डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर ऑफ के लिमिटेड बाय पे द 13% ऑफ डिबेंचर ऑफ 100 ईच इन बीके लिमिटेड। इधर भी वैल्यूज के बारे में नहीं बोला, इसलिए जो सारी वैल्यूज हम कहाँ से लिखेंगे, बैलेंस शीट से लिखेंगे गाइस। तो यहाँ डिबेंचर्स 9% डिबेंचर होल्डर्स है गाइस, राइट। नेक्स्ट आफ्टर राइटिंग द 9% डिबेंचर
The second liability is sundry creditors, and the third liability is other liability. Other liabilities. So guys, after reading the debentures value is 1 lakh. बैलेंस शीट से लिख रहा हूँ दोस्तों, creditor is 40,000 and the other liability is 24,000. So guys, this is the total assets and total liability. It will write from the balance sheet value. And the balance sheet की value लिखिए guys. So total of total liability is 164. Total liability is 164. असेट के टोटल से लायबिलिटी का टोटल माइनस कर दो, यू गेट अ पीसी. 6 में से 4 गया, इट विल बिकम 2. 7 में से 6 दिया 1, 4 में से बन गया 3,12,000. इट्स अ वैल्यू ऑफ पीसी. नाउ उन्होंने बोला है, अब जब नेट एसेट किया है तो ये 3,12,000 पीसी की वैल्यू है. 3,12,000 इज द वैल्यू ऑफ पीसी. आउट ऑफ दैट देयर आर 2 शेयर होल्डर्स इन द कंपनी. 3,12,000 में कितना पेमेंट होगा इक्विटी शेयर होल्डर का और कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर का. तो उन्होंने यहाँ बोला है डी एडजस्टमेंट. आई एम टेलिंग यू डी एडजस्टमेंट. डी चौथा एडजस्टमेंट कुबेर लिमिटेड का. हम कुबेर लिमिटेड का पीसी कर रहे हैं, तो कुबेर लिमिटेड का क्वेश्चन के में जाकर देखिए, फोर्थ एडजस्टमेंट डी वाला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट अ 10% प्रीमियम. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रीमियम देना है. तो हम बैलेंस शीट में जाइए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना है कुबेर लिमिटेड का देखिए. वापस से जाइए बैलेंस शीट में, कुबेर लिमिटेड में जाइए. कुबेर लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर कितना है? कुबेर लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख रुपया. तो 1 लाख में अगर मैं 10% बढ़ा दूँ, क्योंकि मुझे प्रीमियम पे करना है, तो मेरा पेमेंट हो जाएगा 1,10,000 रुपया. अब मैं 3,12,000 में से अगर 1,10,000 रुपया अगर मैं प्रेफरेंस को पे करूँगा, तो मेरा इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट हो जाएगा 2,02,000. ये कैसे आया? ये आया बैलेंसिंग फिगर. फिर से समझाता हूँ. असेट के टोटल से लायबिलिटी का टोटल माइनस करो तो आपको पीसी मिलेगा. उस पीसी में से कितना प्रेफरेंस हो जाएगा, कितना इक्विटी को. प्रेफरेंस का फोर्थ एडजस्टमेंट कुबेर लिमिटेड वाले पार्ट में दिया गया है. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड 10% प्रीमियम. जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रीमियम में पे करेंगे तो 1 लाख पे 10% प्रीमियम होगा, तो 1,10,000 पेमेंट होगा. अब 3,12,000 में से अगर 1,10,000 इफ यू पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो बैलेंसिंग वैल्यू 2,02,000 किसको पे किया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द पीसी वी शुड ड्रॉ द लेजर्स, बिकॉज इन्होंने आंसर में नीचे मांगा है show the necessary ledger account in Bunty and Kuber Limited, also calculate purchase consideration. गाइस हमने सिर्फ परचेस कंसिडरेशन दोनों कंपनी का फाइंड आउट किया है. अब हमें इसके लेजर्स बनाने हैं. तो लेजर्स कैसे बनेंगे? तो अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को क्वेश्चन रहता है कि भाई मुझे कौन सा लेजर बनाना है, कौन सा नहीं, पता नहीं चलता है. तो गाइस 2 लेजर फिक्स है, एक रियलाइजेशन और एक न्यू कंपनी. ये 2 लेजर में तो कोई चेंज ही नहीं है, ये तो हर क्वेश्चन पे बनाना है. अगर क्वेश्चन में इक्विटी दिया है तो इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल बनाने का. अगर क्वेश्चन में इक्विटी दिया है तो इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल बनाने का. अगर कोई क्वेश्चन में प्रेफरेंस दिया है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बनाने का. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ गाइस, अगर क्वेश्चन में इक्विटी दिया है तो इक्विटी शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर कैपिटल बनाने का. प्रेफरेंस दिया है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बनाने का. और एक रास्ता यहाँ पे है गाइस, मैंने बोला 2 लेजर कंफर्म है, न्यू रियलाइजेशन एंड न्यू कंपनी. और नेट पेमेंट मेथड है, तो यहाँ से उसके पीसी से भी आपको लेजर पता चल जाएंगे. इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कैश. और एक लेजर बनाना पड़ेगा कैश आपको. इसके अंदर और एक लेजर बनाना पड़ेगा कैश, क्योंकि कैश में भी पेमेंट है, पर वो कैश का पेमेंट सिर्फ बंटी का है. ये पीसी किसका है गाइस? बंटी लिमिटेड का है. और दिस पीसी इज रिलेटेड टू हुम? कुबेर लिमिटेड. तो बंटी में अगर कैश है तो आपको और एक लेजर यहाँ पे नीचे बनाना पड़ेगा, दैट इज कुबेर लिमिटेड के लिए कैश का लेजर भी आपको बनाना पड़ सकता है. तो इन दिस केस कैश अकाउंट हम बनाएंगे.
पर्टिकुलर रुपीस। एक छोटा सा 20,000 के लिए हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा। दिस इज फॉर द ओनली बंटी लिमिटेड। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द सम्स। हम इसके अंदर ओल्ड कंपनी के लेजर्स जब हम बनाते हैं गाइस, तो एक सिंपल सी चीज़ें हैं कि क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी है वो पूरी की पूरी इसमें लिख देनी है। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उसको पूरा का पूरा इसके अंदर हमें लिखना है। चलो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले एक वैल्यू भी चेंज न करते हुए जितना भी असेट्स है वो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखने का। टू सन्ड्री असेट्स, नाउ द वैल्यू इज आल्सो बैलेंस शीट वैल्यू। तो बोलोगे सर हम जब पीसी बनाते हैं तो एडजस्टमेंट से वैल्यू उठाते हैं, पर जब हम लेजर बनाते हैं तो हम बैलेंस शीट से फिगर उठाते हैं, बैलेंस शीट से फिगर लिखते हैं। तो मैं सिर्फ बैलेंस शीट देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। पहले सारे असेट्स के नाम लिख देता हूँ। गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी। देन नेक्स्ट क्या है वो ये फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स। The next stock, cash, stock, cash at bank, and the last but not least other current assets. जगह शायद कम पड़े तो हम देखेंगे बाद में। एंड द लास्ट इज शेयर इश्यू एक्सपेंस। शेयर इश्यू एक्सपेंस कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में, क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस असेट कहाँ जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स में। वापस से गाइस हम अब वैल्यू पुट अप करेंगे। सबसे पहले गुडविल की वैल्यू 25,000। नेक्स्ट बिल्डिंग इज राइट 1,50,000 एंड 1,40,000। नेक्स्ट 80,000 एंड 60,000। मशीनरीज 80,000 एंड 60,000। आप बैलेंस शीट में देखते रहो और बोर्ड पे देखो तो वैल्यू आपको सीधा सीधा बैलेंस शीट का फिगर लिखना है और कुछ करना नहीं है। बैलेंस शीट से फिगर उठाइए और आपके रियलाइजेशन के डेबिट्स में लिख दीजिए। बैलेंस शीट से असेट्स की वैल्यू उठाइए और रियलाइजेशन के डेबिट में लिखिए 140 एंड 80, 165 एंड 60, 165 and then 60. Next 75,000 and 90,000, 75,000 and 90,000. Then next 13,000 and 8,000, 13,000 और 8,000. Next other current asset 20,000 and 10,000. The next is शेयर इश्यू एक्सपेंस 12,000 और 7,000। तो गाइस आपको असेट साइड समझ में आ गई होगी कि हमने असेट्स में कुछ भी दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाया है, सीधा असेट उठाया और रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा। शेयर इश्यू एक्सपेंस हमने इक्विटी शेयर होल्डर में लिखा। अब लायबिलिटी साइड हम करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2,40,000 और 1,07,000, वो इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, that is the value of equity share capital from balance sheet। हमें बैलेंस शीट की एक भी आइटम, एक भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमने आंसर में ना लिखी हो। we should write all and each and every item of balance sheet should be posted। then preference shareholder, तो preference share capital preference shareholder में जाएगा। by balance brought down बराबर that is preference share capital from balance sheet। The value is 1,50,000 and 1,50,000 and 1,00,000 rupees here। The next is general reserve P&L। general reserve कहाँ जाएगा? That is equity shareholder। general reserve and P&L both are goes to equity shareholders account। value 45 and 40, 45,000 and 40,000। The next is P&L, that is 30,000 and 21,000। गाइस अब तक मुझे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ गया है।
अब आपको लायबिलिटीज लिखनी है। लायबिलिटी बट ऑलवेज हमने फर्स्ट क्वेश्चन निशा उषा का किया था, वहाँ मैंने पढ़ा था कि सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाती है। तो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, while you write the sundry liabilities, it's a debenture, 9% debenture, right? 9% debenture के बाद हम लिखेंगे sundry creditors and other liability, and other liability. Debenture is 1 lakh and 1 lakh, both are 1 lakh, कोई इश्यू ही नहीं, दोनों 1 लाख। Next, sundry creditors 60,000 and 40,000, that is okay. 60,000, 40,000. Next is other liabilities 40,000 and 24,000. 40,000 and 24,000. अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपका जो बैलेंस शीट का पार्ट लिख के हो जाता है, तब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार असेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में, लायबिलिटी रियलाइजेशन क्रेडिट में, शेयर इश्यू एक्सपेंस इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में, बैलेंस ब्रॉट डाउन इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स पीएनएल विल बी इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्रेडिट में जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दिस इज अ बेसिक पोस्टिंग ऑफ बैलेंस शीट। आप देख सकते हो यहाँ तक जितना भी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो सिर्फ बैलेंस शीट का पोस्ट। अब एडजस्टमेंट से हमें सिर्फ एक चीज लिखनी है, वो है पीसी 465 एंड 3,12,000। मतलब अब हमें एडजस्टमेंट नहीं देखना है, ओल्ड कंपनी के लिए हमें एडजस्टमेंट नहीं देखना है। हमने एक बार बैलेंस शीट का पोस्टिंग होने के बाद हमें एडजस्टमेंट से क्या लिखना है, पीसी। और पीसी रिकॉर्ड की एंट्री इन लेक्चर्स ड्यूरिंग द लेक्चर ऑफ क्लास मैंने 50 बार आपको एक्सप्लेन की है कि ये एंट्री कभी भूलना नहीं। न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो हियर द बीके लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बंटी का पीसी, यहाँ पे पीसी आएगा 4,65,000 एंड 3,12,000। न्यू कंपनी में लिखा टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में लिखोगे बाय न्यू कंपनी बीके लिमिटेड, न्यू कंपनी दैट इज पीसी 465 एंड 3,12,000। यहाँ पे आपका सम्स कंप्लीट हो जाता है, पर यहाँ पे ये सारे लेजर्स जब क्लोज करने पड़ते हैं, अगर आप यहाँ तक भी करते हो गाइस तो आपको 20 मार्क के सम्स में इजीली 15-16 तक आ जाता है, आपका क्लोजिंग 4 मार्क का रह जाता है। पर जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, दे शुड टेली आउट द क्वेश्चन। यहाँ तक आप इजीली कर सकते हो, बैलेंस शीट का पोस्टिंग कर सकते हो, पीसी रिकॉर्ड कर सकते हो, बीके रियलाइजेशन में बीके लिमिटेड। आफ्टर दैट नाउ स्टार्ट टू क्लोज डाउन द बिजनेस। हमें सारे बुक्स क्लोज करने हैं, तो फर्स्ट क्या क्लोज करोगे, सबसे पहले हम न्यू कंपनी बंद करेंगे। फर्स्ट वी क्लोज न्यू कंपनी, तो न्यू कंपनी में 465 है और 3,12,000, तो ये दोनों ही अमाउंट उठा के यहाँ लिख देंगे। 465 क्रेडिट साइड में, 3,12,000. Now, in that questions, how we going to do the sums? यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर कैश, देन 12.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फ्रेंड्स बहुत ही फेमस सम्स है ये, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमें ये पीसी से वैल्यू मिलेगी इसकी। अब ये कैसे पता चला, तो यहाँ से पता चलता है कि पीसी में इक्विटी शेयर का पेमेंट हुआ है, कैश का पेमेंट हुआ है, 12.5% प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट हुआ है। कितना प्रेफरेंस को दिया जाएगा, कितना इक्विटी को यहाँ लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई हमें जो डेबिट साइड में पीसी है उसका पेमेंट किस फॉर्म में हुआ है, वही उसको वहाँ से क्लोजिंग शुरू करना है, राइट। तो हियर द इक्विटी इज 2,80,000 गाइस, 20,000 is your cash and 1,65,000 is your preference share. Here in Kuber Limited में एक भी पैसा कैश में नहीं है, इक्विटी 2,02,000 है गाइस और 1,10,000 आपका प्रेफरेंस शेयर। अब जो ये आपने बाय में लिखा पूरा, बाय में वो जाएगा टू में, वो कहाँ जाएगा गाइस, ये जितना भी बाय में लिखा
मतलब जो बैलेंस 465 कहाँ से किस फॉर्म में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इक्विटी को 280 पेमेंट होगा, कैश को 20,000 होगा, प्रेफरेंस को 165 होगा, इक्विटी को 2,02,000 होगा, इसको 1,10,000 होगा। ये पूरा पेमेंट गाइस 22 से 2 में जाएगा। अब इक्विटी का पेमेंट इक्विटी कैपिटल में लिखिए, टू बीके लिमिटेड बराबर कितना है 2,80,000 और 2,02,000। प्रेफरेंस का अमाउंट प्रेफरेंस में लिखिए 165 टू न्यू कंपनी बीके लिमिटेड 1,65,000 एंड 1,10,000। और कैश का कैश में लिखिए टू बीके लिमिटेड, ओनली बीके का है, बंटी के लिए है, 20,000 कैश में आएगा गाइस। नाउ द नेक्स्ट, आफ्टर दिस यू गोइंग टू क्लोज डाउन योर प्रेफरेंशियल कैपिटल फर्स्ट। वापस से बोल रहा हूँ, फर्स्ट ये क्लोज किया, सेकंड नंबर पे आप प्रेफरेंशियल कैपिटल क्लोज करो। प्रेफरेंशियल कैपिटल का बैलेंस 165, 110, डेबिट से वैल्यू उठा के हमने क्रेडिट में लिखी, कुछ भी माइनस करने को नहीं है, तो हम जो भी वैल्यू बचेगी वही लिखेंगे। 165 एंड 1,10,000, ये जो बाय में बचा गाइस हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कहाँ जाएगा दोस्तों? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये बाय से उठा के 2 में डालेंगे, ये बाय से उठा के प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डालेंगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये आया 165 और 1,10,000। अब हम सेकंड नंबर पे ये बंद किया, तो थर्ड नंबर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बंद करेंगे गाइस। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर आप बंद करोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ये जो साइड ज़्यादा है वो साइड पहले क्लोज करोगे, 165 नॉर्मल एंड देन 110। अब यहाँ बैलेंस बचने लगा दोस्तों, बैलेंस बचा कितना? ये 15,000, ये 10,000। जो भी बैलेंस बचेगा दैट विल बी गोज टू रियलाइजेशन। ये कहाँ जाएगा दोस्तों? रियलाइजेशन। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट हमने न्यू कंपनी बंद किया, न्यू कंपनी का बैलेंस उसके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में जाएगा जिस तरह से उसका पीसी का डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड नंबर पे प्रेफरेंशियल कैपिटल बंद किया, कैपिटल का बैलेंस होल्डर में गया, होल्डर बंद करेंगे, उसका बैलेंस अगर कुछ बचा तो रियलाइजेशन में जाएगा, बचा तो ही जाएगा, वो बाय में बचा है तो रियलाइजेशन के 2 में जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। दैट इज वैल्यू इज 15,000 एंड 10,000 गाइस, 15,000 और 10,000। देन वी गोइंग टू क्लोज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कैश। हम कैश का लेजर बंद करेंगे, कैश का बैलेंस, कैश किसको पेमेंट होने वाला था? कैश इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट होने वाला था, तो कैश का बैलेंस कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा। ये बाय में बचा है तो होल्डर के 2 में जाएगा, 2 कैश। बंटी का कैश है तो बंटी को ही देने का, कुबेर को देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इक्विटी कैपिटल बंद करेंगे दोस्तों। इक्विटी शेयर कैपिटल 2,80,000 है दोस्तों, 2,02,000 है, 2,80,000 है दोस्तों, 2,02,000 है दोस्तों। नाउ द बैलेंस, ये जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में। अब इक्विटी शेयर होल्डर के 2 में लिखोगे आप, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,80,000। मैम प्लीज जूम रखिए इनको जरा, सॉरी 280 और 2,02,000 जो बैलेंस बचा था वो कैपिटल से होल्डर्स में चला गया। नाउ प्लीज जूम द थिंग्स प्रॉपर्ली। नाउ द फाइनली वी गोइंग टू क्लोज डाउन द लेजर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। हम बंद करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, हम बंद करेंगे तो देखेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है, बट हम मुझे लगता है बंटी में डेबिट साइड ज़्यादा है। 5, 10, 3, 13, 5, 18, 1, 5, 1, 6, 14, 15, 19, 25, 30, 33, 32, 36,
668,000 हो रहा है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ कितना लगा है, 668 है, 5 और 3 8, 6 4 10 16 है, 3,000 रुपये नेट लॉस बचा। नेट लॉस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर, इधर ये साइड ज़्यादा लग रहा है, 4 2 6 7, 4,76,476, बट यहाँ पे ले आना 0 0 0, 5 10 और 8 18, 5 10 18 18 18 18। Which side is more? Look at this. 4 lakh. Total mistake something is there. नहीं, डेबिट साइड ज़्यादा बेटा, इसका भी डेबिट ज़्यादा लग रहा है। चलो देखते हैं गाइस, ये साइड भी ज़्यादा लग रहा है, डेबिट ही ज़्यादा है। सॉरी, 5 10 18, 1 3 4 7 6 13 8, 21 6 27 9, 27 और 9, 36 37 38, 3 4, 488। डेबिट साइड ज़्यादा है, 12,000 का डिफरेंस क्लियर दिखाई दे रहा है। दोनों लॉस है गाइस। फिर नेट लॉस 3,000 एंड 12,000, दोनों कंपनी लॉस में है। 3,000 12,000 बाय में है तो 2 में जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के। 2 रियलाइजेशन लॉस 3,000 एंड 12,000 गाइस। पहले मुझे लग रहा था डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो डेबिट ही ज़्यादा था। 488 में से हमने ऊपर का माइनस किया। सो गाइस नाउ वी गोइंग टू टेल यू दिस। तो इसका टोटल कीजिए, 2 3 5, 2 1 3 8 11, 1 3,15,000, 2 2 4 और 7 11, 1 2 221। यहाँ का टोटल करिए, 5 11 3,15,000 टेलीफोन, 1 6 4 10 2 12, 1 2 21, ये भी टैली हो गया। तो एट लास्ट और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट गोइंग टू बी टैली। फिर से एक बार देखो, बेसिक पोस्टिंग आप कर लोगे, पीसी का रिकॉर्ड कर लेंगे, पर जो क्लोजिंग है इस अकाउंट्स का, वो सभी बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि ये टफ है, बट बहुत आसान है। मैं एक प्रोसेस पूरी वापस से लिख के देता हूँ। सबसे पहले मैंने न्यू कंपनी क्लोज की, क्लोज अकाउंट क्लोजेस। हमने सबसे पहले न्यू कंपनी क्लोज की। न्यू कंपनी से हमने 3 जगह चीजें लिखी, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कैश। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कैश। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस और कैश का बैलेंस हमने इक्विटी शेयर होल्डर में लिखा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर में लिखा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बैलेंस हम ले गए रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन का जो बैलेंस था यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर। फिर से बता, न्यू कंपनी का बैलेंस 3 जगह गया, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर में गया, होल्डर रियलाइजेशन में गया, रियलाइजेशन इक्विटी शेयर और कैपिटल और कैश का बैलेंस होल्डर में। गाइस ये क्लोजिंग प्रोसेस थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा टीडियस लगेगा, अदरवाइज सम इज वेरी इजी। ये एक ऐसा सम है जहाँ पे अमालगमेशन, ओल्ड कंपनी, मेथड ऑफ दोनों पीसी सब अच्छे से कंप्लीटली कवर्ड होता है। तो जो स्टूडेंट निशा उषा और बंटी कुबेर सम कर लेता है, उसका ओल्ड कंपनी एटलीस्ट एकदम क्लियर हो जाता है। ओल्ड कंपनी बुक्स अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। ये दोनों ही सम जो मैंने आज किए, कल जो हमने निशा उषा किया और आज जो हमने बंटी और कुबेर किया, ये दोनों सम से आपका जो बेसिक ऑफ ओल्ड कंपनी एंड दोनों मेथड पीसी में क्या डिफरेंस है, नेट एसेट कैसा पता करें और नेट पेमेंट कैसा पता करें, वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। ये मैंने आज एक्सप्लेन किया है।
I hope you understand, guys. Any problem, any doubt, you can call me personally, and please watch the video. I hope you like and you are easily understand in lockdown. So thank you very much.